business analysis, you will get SWOT. Can anyone tell me what is SWOT? SWOT stands for strength, weakness, opportunity and threat. This is very important और ये term आप हमेशा याद रखना. This will continue for you till your TYBMS. Okay. So whenever you are doing the business, you have to do the SWOT analysis. Okay, that is SWOT. That is strength, weakness, opportunity and threat. Now let's see one by one. Second page पे देखो. Identification of the strength. That means you have to find out कि what is the strength of your business. आप जो business कर रहे हो उसकी ताकत क्या है, and you have to improve. जो भी आपका strength है, जो भी आपकी ताकत है आपके business की, उसको आपको क्या करना है, increase करना है. See, the analysis of the internal environment helps to identify the strength of the firm. For example, the company has a good personnel policy in respect of the promotion, transfer, training, etc. See, the success and survival of any organization depend upon the employee and the consumer. So it is very important at the time of hiring the employee. जब आप employee को hire करते हो तो proper होना चाहिए. There should be good HR. Okay? अगर मैं आप लोग interview के लिए बैठे हैं and suppose मेरे पास एक ही post खाली है and you all are equally capable, equally qualified, equally skilled, but as a HR manager आप में से best को select करना वो मेरी duty है. Okay, because you will be the employee of my organization and you will serve for my organization. So I want an employee जो dedication and commitment के साथ काम करे. So ये मेरा strength होगा कि मेरा employee जो है वो बहुत dedicated है. या मेरा strength क्या हो सकता है कि मेरे पास good infrastructure है, मेरे पास good machinery है, मेरे पास जो है latest technology है. तो ये सारी चीज क्या है, मेरा strength है और ये मेरे strength को मुझे क्या करना है, increase करना है. Understood this point? आगे देखो. Then it will be the strength of the firm. The strength can be identified through the job satisfaction in the performance of the employee. After the identification of the strength, the firm must consolidate to try improving. First, I have to identify कि मेरा strength क्या है. Okay? जैसे for example, मेरा 7 subject है and I want to gain a O grade. मुझे O grade चाहिए. अभी आपको पता चल गया ना, A grade, A plus, सबसे highest जो है वो O grade है. और मुझे पता है कि my mathematics is very low. मेरा mathematics अच्छा नहीं है. So मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी पेपर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. Because I know कि I cannot gain in mathematics. तो मुझे accounts के ऊपर, theory papers के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. Same way for the organization also. We have to see कि कहाँ हमारा strength है और जो भी हमारा strength है, we have to improve upon that strength. Okay. Second point is the identification of weaknesses. See, we are the human being. अगर हमारे में strength है तो हमारे में weaknesses भी है. हर किसी में weaknesses है. आप लोगों में weaknesses है ना, जल्दी नहीं उठने हो रहा है सुबह में, है ना, because it's a winter season. Yes or no? Same is applicable for me also. Even I am human being. Okay, but we can make it. जब अलार्म बजता है तो ऐसा लगता है कि बंद कर दो, सो जाओ. Yes, it is equivalent for all of us. But once you get up, फिर आपको दिल होता है आने के लिए कॉलेज. Same way organization में भी ऐसा होता है. Organization की कितनी weaknesses होती है? Let's see क्या weaknesses हो सकता है. The analysis of the internal environment also indicate the weaknesses. वहाँ पे देखो third last से fourth line पे technology used by the firm of the machine may be outdated. That means कि my organization is not capable enough to purchase the new modern machinery. मेरी जो machinery है वो outdated है. See, for example, now I am taking the online lecture. एकदम अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर मुझे यूज करना हो तो देयर शुड बी OHP over here or there should be a smart board over here. So instead of seeing whatever I am teaching over here, instead of seeing in your mobile phone, okay, you can see over here in OHP. That will be the better technology. Yes or no? Yes. Okay, because this online student can see, but offline if you're coming to college taking lot of pain, then there should be a कोई arrangement करके रखना चाहिए आप लोगों के लिए. There are some classes जहाँ पे ये arrangement है, smart board है, NOHP है. So instead of looking at your mobile phone जो इतना छोटा छोटा font, you can see in the OHP. Okay, so this may be weakness कि हमारे पास उतनी latest technology नहीं है, या है तो इतने classroom को हम लोग नहीं दे सकते. So this will be our weakness. So जैसे हम लोग strength increase करते हैं वैसे हमको क्या करना पड़ेगा, weaknesses को कम करना पड़ेगा. Clear? So हमारा जो arrow है वो strength का upward जाएगा and weaknesses का downward जाएगा. So S strength, we have to increase the strength. Weakness, we have to decrease the weakness. Clear?
Third point, identification of the opportunities. An analysis of the environment help the business to identify the opportunities. See, strength and weakness is inside of the organization. And last को जो दो point है, opportunity and threat is outside to organization. Okay, that means कि opportunity will not tell कि मैं opportunity हूँ, मुझे grab करो. For example, see during the COVID, जो COVID situation था, there are lot of problems हुआ बहुत सारे लोगों को. But Zoom ने बहुत पैसे कमाया. Yes or no? सैनिटाइजर कंपनी ने बहुत पैसे कमाई, मास्क की कंपनी ने बहुत पैसे कमाई. That means कि opportunity will not tell. See, before this COVID situation, only the Lifebuoy and the Dettol is preparing the sanitizer. सिर्फ ये दो कंपनीज थी जो सैनिटाइजर प्रिपेयर करती थी. But after COVID, अभी आप मार्केट में जाओगे तो n number of sanitizers companies are there. Okay? So अगर कोविड की वजह से बिजनेस को, ग्लोबल इकोनॉमी को लॉस हुआ है, तो देयर आर मेनी कंपनीज जिसने प्रॉफिट कमाया है. फॉर एग्जांपल गूगल, अमेज़न, ओके, जितने भी ऑनलाइन एप्स है वो सारों ने बहुत पैसे कमाए हैं. सो द अपॉर्चुनिटी विल नॉट टेल कि मैं अपॉर्चुनिटी हूँ. बिजनेसमैन में वो सेंस होना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे. ओके, सो अपॉर्चुनिटी विल बी आउटसाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थ्रेट. थ्रेट का मतलब होता है खतरा. अगर बाहर से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बाहर से आपको खतरा भी मिलेगा. खतरा जो है वो क्या हो सकता है? आपका कॉम्पिटिटर. For example, see, there is a time when the Nokia is a leader in the market. Nokia का कोई competitor नहीं था. Okay, मार्केट में सिर्फ Nokia फोन ही था. मैं पिछले 10 साल पीछे की बात कर रही हूँ. If you go back to 10 years, then Samsung came and Samsung वो टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं बनाता था. Samsung टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स बनाता था. Then suddenly Samsung ने क्या किया कि वो टेलीकम्युनिकेशन में आ गया, कम्युनिकेशन में आ गया और उसने क्या किया? मोबाइल फोन बनाया. उसमें एक ही चीज थी, दैट इज एंड्रॉइड वर्जन, जो नोकिया में नहीं थी. ओके, देन व्हाट्सएप, वो टाइम पे व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस हुआ एंड पीपल जो है फैसिनेटेड हो गए व्हाट्सएप के लिए. एंड बिकॉज नोकिया फोन में व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं होता था एंड सैमसंग फोन में होता था, तो लोगों ने क्या किया? सैमसंग स्टार्ट परचेजिंग. और ऐसा टाइम आया कि नोकिया मार्केट से आउट हो गया. ओके, ऐसा भी टाइम आया कि उसको माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया. नोकिया पूरी तरह से मार्केट से आउट हो गया. सो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यू आर द बिजनेस लीडर. फॉर एग्जाम्पल कोलगेट वॉज अ बिजनेस लीडर. सी, हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर भी कोलगेट यूज करते होंगे. कोलगेट वॉज सो ओल्ड, बट 1998 में क्या हुआ? पेप्सोडेंट ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर दिया एंड कोलगेट पूरा मार्केट से आउट हो गया. सो बिजनेस में हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हम लोग लीडर है तो हम लोग हमेशा लीडर ही रहेंगे. ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन होता है. देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन इन द मार्केट. You can see market में आप जाओ, there is a Vivo, there is a Oppo, there is a Sony, different variety of mobile. Okay, Vivo जो आपको फीचर्स 10,000 में दे रहा है, वो Oppo आपको 8,000 में देगा. तो you will go for Oppo. वही सारे फीचर्स, वही वर्जन अगर आपको 8,000 में मिलेगा तो आप 10,000 में क्यों डालोगे? Yes. So अगर मार्केट से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मार्केट से आपको खतरा भी मिलेगा. So ultimately SWOT का मतलब होता है strength, weakness, opportunity and trend. You have to increase your strength. You have to decrease your weaknesses. Opportunity को grab करना है और threat, खतरे को अपने आप से बचाना है. I hope this one is clear. Okay, let's move to next. उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिर्फ point number 5, next page और 22, page number 22. Facilitating planning. Okay, आपने प्लानिंग पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में. प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट. विदाउट प्लानिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता. नेक्स्ट, facilitate organizing. Once you plan, you have to organize the resources, maybe financial resources, physical resources, human resources that you have to arrange. Flexibility in the business operation. Suppose मैंने एक business start किया and this business is not working out, so मुझे flexible होना चाहिए. I can change that business model. Okay, अगर मैं एक ही business model पे stick होके रह जाऊंगी तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मुझे business से out होना पड़ेगा. If you see the multinational companies, if you see the example of टाटा हर चीज बनाता है. कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ टाटा के प्रोडक्ट? टाटा कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है? सॉल्ट. टाटा सॉल्ट बनाता है. टाटा कार भी बनाता है. टेक्सटाइल कंपनीज भी है. ओके, दैट मींस कि अगर मेरा एक बिजनेस नहीं चला तो मेरा दूसरा बिजनेस चलेगा. ओके, इफ यू सी, आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ द ओरियो बिस्किट. आप लोग ओरियो बिस्किट खाए हो या देखे होगे आपने, एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा. तो ओरियो का एक बिस्किट है जो ब्राउनिश कलर में आता है, चॉकलेट वर्जन में. और ओरियो का एक बिस्किट मार्केट में लॉन्च हुआ था ऑरेंज कलर में.
बट वो ऑरेंज कलर का जो था वो मार्केट में सरवाइव नहीं हुआ, वो मार्केट से आउट हो गया। बट जो चॉकलेट कलर का बिस्किट है, ब्राउनिश कलर का, वो अभी भी मार्केट में है। दैट मीन्स कि अगर आपका एक नहीं चल रहा है, ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपका एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, micro environment refers to the business itself and all the challenges that come from inside of the business. Okay, that means business को अंदर से जो भी challenges मिलते हैं inside, that means मेरे employee जो है वो job छोड़कर जा रहे हैं, मेरी मशीनरी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, मेरे पास infrastructures नहीं है, ये सारा क्या है? Micro environment. It refers to all the forces that are part of the larger society and affect the business. Okay, बाहर से मुझे जो खतरा मिल रहा है सोसाइटी, जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन की वजह से लॉकआउट्स हो गए थे, ओके, बिजनेस को बंद करना पड़ा था, एम्प्लॉयज घर बैठे थे, सी देयर सम जॉब जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम था। फॉर एग्जांपल हमारा जॉब, हम तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हमको एक दिन भी छुट्टी नहीं मिली थी। इनफैक्ट बात को 12 बजे 1 बजे भी हमें स्टूडेंट मैसेज करते थे एंड हम लोग को आंसर देना पड़ता था। बट कुछ ऐसे जॉब्स है जो घर में बैठ के नहीं हो सकते थे, फैक्ट्री के काम जो होते हैं, सो वो टाइम पे टोटल लॉकआउट हो गया था। तो ऐसी जो चीजें बिजनेस को खतरा देती है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो एनवायरनमेंट। सेकंड पॉइंट, business firm can take control over the challenges and the influences of the micro environment. अगर मुझे इंटरनल खतरा मिल रहा है अपने अंदर से, दैट मींस मेरे बिजनेस के, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसको कंट्रोल कर सकती हूँ, बट मैक्रो एनवायरनमेंट को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट, इम्पैक्ट, it comprises of all those elements that can impinge on the firm, usually industries, but does not affect all the firm in the industries. That means मैं मल्टी प्रोडक्ट बना रही हूँ एंड मेरा मोबाइल फोन जहाँ जो इंडस्ट्री में मोबाइल फोन बनता है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मेरा जहाँ पे रेफ्रिजरेटर बनता है उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सो मैं क्या करूंगी, मेरे जितने भी वर्कर्स है या मेरे जितने भी पावर है वो मैं दूसरी जगह डाइवर्ट कर दूंगी, ओके, ताकि मेरे फर्म को नुकसान ना हो। मेरी एक इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो मैं जितने अपने मैन पावर है, एसेट पावर है, वो अपनी दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ डाइवर्ट कर दूं। It comprises of all those factors which is common in effect all the firm and industries. And जो external environment है, macro environment है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। लास्ट देखो इसमें क्या क्या है, इट कंप्राइजेस ऑफ द इंटरनल वैल्यू सिस्टम, मिशन, ऑब्जेक्टिव, दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन के जो वैल्यू है, ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, वो सबके सब इंटरनल में आता है। कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब कुछ आउटसाइडर्स में आता है। फॉर एग्जांपल एसएनडीटी यूनिवर्सिटी क्यों बनी हुई है? फॉर द विमेन एम्पावरमेंट। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएनडीटी यूनिवर्सिटी इज द विमेन एम्पावरमेंट। वैसे ही जब भी कोई बिजनेस बनता है तो business has to give the vision and mission. Okay, what is the vision of the business and what is the mission of the business? Okay, that comes into the micro environment. और suppliers, distributor, competitor, ये सारी चीजें जो है वो micro environment में। macro environment में देखो क्या है, natural, political factor। जैसे अभी natural factor चल रहा है, nature की तरफ से ये कोविड आया हुआ है। Now कब तक रहेगा we don't know। तो नेचर अगर बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है बिकॉज ऑफ द नेचर कैलामिटी, अर्थक्वेक, फ्लड या कोई चीज जो अनकंट्रोलेबल है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो एनवायरमेंट। पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, फॉर एग्जांपल देयर इज ए डिमोनेटाइजेशन ऑफ द करेंसी और देयर इज ए इम्पोजिशन ऑफ द जीएसटी, ऐसी चीजें भी जो है बिजनेस को नुकसान करती है। सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल एंड लीगल, ये सारी चीजें जो है वो कोई भी कंपनी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। So this is all about the micro and macro environment. I hope it is clear, students. Students clear? Okay. So first I'll take your attendance.